Hello and a very warm welcome to Red Sports and the World Athletics Continental Tour bronze event just concluded, and we saw a few majestic performance, impressive performance from the Indian athletes, and some of the good performance from the overseas athletes also. Uh, Today, I mean, if we talk about the highlight of the today, that was Mulli Shankar uh, with a big leap, 8.13. I mean, that's massive. Coming back after the injury and back to back. This was his fourth event, and I mean, gold in all. So, and that's how shows that the kind of player he is, the kind of athlete he is, and also it shows his mentality. That's also up in Sanwaj Khan from Uttar Pradesh. He also uh, jumped 8.04, his first 8 meter mark. And if we talk about other sports also, that Anu Rani once again shown that why she is rated so high a year where she hasn't done much, but in the last 4 5 days, whether we talk about the meet in Poland or today, she held the javelin over 62 meters, 62.01. I mean, that's massive. Uh, and also looking at the world athletics, and that's a great performance. Abdullah Abubakar clinched the top position, and if we talk about the javelin, I mean that was touted as a top draw. Where the Indian javelin throwers disappointed a bit, but we have seen the rise of Shivam Lokhare. He hurled the javelin 80 meter once again, and Shivam was, I mean, majestic performance from him. But the best performance came out in javelin was the Rumesh Pathirage Taranga. Uh, Back to back medals in India. Last competition he played, that was NC Classic. Today, once again, a great performance from the Rumesh. 86.50, that's massive. The world qualification mark is 85.5, and Rumesh just punched his ticket to the Tokyo uh, by just crossing the direct qualification mark. And there was others, a few events also. I mean, we talk about the 100 meter, that used to be, I mean, talk of the town when Animes Kujur, it was that Animes and Fahimi, it was Animes versus Fahimi, but in the morning Animes pulled out. He was marked DNF. He came for the race, but he didn't start. Maybe something about thinking about the injury, but Fahimi ran the 100 meter final, and he won also. But that the thing that due to heat, uh, there was some cramps. He suffered, maybe some sources says that he suffered a groin injury, sustained a groin injury. So heat also played a factor. Some of in 400 meter, I have seen Rins Joseph. He ran 400 meter, but he was taken inside. His medical team came, so heat was a factor when the event started. But just after the evening, around 7 p.m., the weather became cool, and everyone, I mean, the best came out. But the Mulli Shankar 8.13, that's a highlight. We talked to Anurani after the match. We talked to Abdullah Abu Bakar. We had a chat with Sally Singh also in the mixed zone. Also Animes Kujur, and a long interview with Mulli Shankar. So follow us, subscribe us, and keep tracking us. You will get to see some interesting behind the scenes stories, some photos, and also that what athletes said actually about their performance, about the first World Continental Bronze Tour. Thank you. एंट्री था तो मेरा करना पड़ा। मेरे को पता नहीं था कि 100 करना ज़रूरी है, एंड रूल्स के हिसाब से मेरे को पता नहीं था वो चीज़। तो कोच बोले कि तुमको 100 करना पड़ेगा, नहीं तो 200 करना मतलब तुमको मिलेगा नहीं 200 करने के लिए। तो मैं जस्ट 100 निकला एंड जस्ट छोड़ दिया मेरे। उसके बाद मेन 200 था। 200 तो सुबह ईजी लेके गया जस्ट फॉर फाइनल्स क्वालिफाई करने के लिए। एंड अभी मेन था, एंड अभी ऐसा था कि मेरा होम ट्रैक है, मेरे पीछे तो अच्छा परफॉर्म करना है। वो थोड़ा सा प्रेशर था मेरे में, क्योंकि इतना सा पब्लिक में पहली बार यहाँ देखा है एथलेटिक्स के लिए। तो वो था वो चीज़ कि करना अच्छा अच्छा परफॉर्म करना है। तो फिर जब लीग छूट गई फिर उसके बाद हाउ डिड यू कम बैक इन द लास्ट 30 मिनट? हाँ नहीं, वो उतना भी लीड ऐसा हुआ नहीं था। कोरिया वाला उतना भी लीड नहीं बनाया था मेरे से। एंड मेरा था कि ये पार्ट में हमें पता था कि मैं आ जाऊँगा वापस। एंड ये था कि मतलब इस पार्ट में कोच मेरे को बोले कि जस्ट फॉर्म मेंटेन करना। हमेशा बोलते हैं फॉर्म मेंटेन करना ये पार्ट में, क्योंकि हर एक एथलीट उसमें फॉर्म मतलब डिफॉर्म हो जाता है हर समय, आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है मतलब उस समय। ये जो लास्ट 50 पार्ट है, तो फिर मेरे कोच वही बोले कि बस तुम फॉर्म मेंटेन करना अपना, एंड तुम अपना विन करोगे। तो वही किया मैंने। So after this, how do you see your chances in the World Championship? आफ्टर दिस मैं जैसे कि वहाँ ही बोला था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि मैं इतना कुछ हाई एक्सपेक्टेशन नहीं था मेरे, मतलब मैं रखा हूँ।
मतलब ऐसा था कि मेरे को अपने जो पीवी है उसके आसपास ही रहना है, ऐसा करके इट्स ओके, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि मैं अच्छा परफॉर्म किया एंड ऐसा यहाँ मतलब जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनको मैं डिसअपॉइंट नहीं किया। You have been competing a lot throughout the season. So coming into this, were you tired or did you feel that हाँ मतलब इस समय ऐसा था कि सब बड़े बड़े मीट थे, मैं यूरोप गया तो हर सेल मतलब हर एक सिल्वर लेवल का मीट था एंड डायमंड लीग था मतलब ग्लोबल लेवल का। तो मेरे कोच के लिए फर्स्ट टाइम था, तो फिर हम लोग को समझ नहीं आया कि इन बिटवीन कॉम्पिटिशन कैसे मैनेज करना है, एंड हर वीक कॉम्पिटिशन था मेरा। तो फिर मेरे कोच को भी ये सब चीज़ नया था, एक्सपीरियंस था, नया सीखने को मिला एंड मेरे को भी सीखने को मिला। एंड वहाँ जब डायमंड लीग में खेला तो वहाँ पे बड़े बड़े एथलीट्स को जब देखा तो बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को। तो बहुत सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए ऐसा इम्प्लीमेंट करूँगा एंड मतलब क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस क्या बोलते हैं इंप्रूव करने में हेल्प आएगा सारी चीज़ें। ये गेम आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से गया है कि ओवर पार गया, अंडर पार गया, हाउ वाज इट? इतना ही एक्सपेक्ट किया था मैं तो। अनिमेश, क्या मतलब लगता है जब से आपने अपना बेस शिफ्ट किया, ट्रेनिंग बेस शिफ्ट किया, उसके बाद क्या आपने शिफ्ट के सेंस कहाँ? यूरोप में आपने काफ़ी ट्रेन किया इस बार, ठीक है, स्विट्जरलैंड में आपने ट्रेन किया, उसके बाद क्या कुछ टेक्निकल चेंजेस किया अकॉर्डिंग टू वेदर एडजस्ट करके, क्या मतलब कुछ किया ऐसा? वहाँ तो मोस्टली जब मैं स्विट्ज़रलैंड में था, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था स्विस विंटर ओलंपिक टीम के साथ, तब से मैं मतलब वहाँ मोस्टली मैं स्टार्ट्स को फोकस किया क्योंकि मेरा वो पार्ट बहुत लैग कर रहा था मैं तो मैं वहाँ पर फोकस किया एंड ब्लॉक स्टार्ट था। हाँ तो मैं वो सारी चीज़ें अभी यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत इंप्रूव मेरे को ऐसे दिख रहा है मैं खुद के में। एंड जब से मैं आया हूँ तब से मतलब मेरे को यहाँ थोड़ा वो फील हो रहा है, मतलब क्या बोलते हैं मेरे को डेली सर्दी हो रहा है मेरे को, आई डोंट नो वाई क्यों हो रहा है। तो आई थिंक वहाँ एकदम 1.5 महीना में सर ठंडे वेदर में था एंड सडनली यहाँ एकदम ह्यूमिड और हॉट वेदर था, तो फिर मैं उस चीज़ को धीरे मतलब यहाँ एक्लेमटाइज हुआ इस वेदर में। एंड नेक्स्ट 20th को मेरा इंटरस्टेट है तो सेम कंडीशन वहाँ भी ऐसा रहेगा। आपने बॉक्सलेग के वो कोच के साथ भी आपने ट्रेन किया, तो क्या इम्प्रूवमेंट दिखा, क्या मतलब कुछ नया सीखने को मिला, क्या फायदा उसका क्या हुआ? हाँ मोस्टली तो मैं ब्लॉक से काम किया, उसी पे ज़्यादा मतलब ऐसा मतलब वो भी फॉर्म में स्प्रिंटर ही थे बट उसमें उन्होंने तो ज़्यादा जा नहीं पाए, तो फिर वो एसएनसी बन गए। तो फिर वो मेरे को मतलब बता रहे थे कि तुम्हारी इसी जगह में ऐसा क्या बोलते हैं तुम लैग कर रहे हो, तो फिर वहाँ से मैं मतलब स्टार्ट पे मोस्टली काम किया मैं। 200 के लिए अनिमेश की पूरी प्लानिंग क्या होती है कि स्टार्ट करना है जो 200 और अब जब जब टर्न आता है तो वहाँ पे क्या अपनी बॉडी को ऐसे कैसे पोजीशन करके देखते हो? ये तो वर्ल्ड वाइड हो जाएगा मेरा सीक्रेट। मैं तो ये चाहता हूँ मतलब कौन हमेशा मैं पुश करता हूँ हमेशा जितना कर सकूँ, एंड जो फाइनल का 80 मीटर 80 इन द सेंस जो स्ट्रेट पार्ट है वो मेरा मेन पार्ट रहता है, वहाँ मैं फॉर्म मेंटेन करता हूँ मोस्टली। एंड जो ज़्यादा फिनिशिंग का है वहाँ बस हर एक एथलीट का वहाँ मतलब क्या बोलते हैं फॉर्म मतलब ख़राब हो जाता है, बट मेरा उसमें रहता है कि मैं फॉर्म मेंटेन करूँ एंड वही पार्ट है जिसमें मैं बेस्ट हूँ। और फर्स्ट 10 स्ट्राइड्स में अभी क्या बेटर कर सकते हो? फर्स्ट 10 जो आपका स्ट्राइड्स है ब्लॉक स्टार्ट के बाद उसमें क्या बेटर कर सकते हो अभी, क्या मतलब? अब वो तो काम कर ही रहा हूँ, उसमें क्या ही बोलूँ मैं, काम चल ही रहा है। और ये वर्ल्ड एथलेटिक्स क्वालिफिकेशन के चांसेस को आप कैसे देख रहे हो अभी? अभी चांसेस तो मैं रैंक वाइज ही देख रहा हूँ क्योंकि 20.1 के लिए और मेरे को ट्रेनिंग करना मेरे को पता है। आप अपने आप को क्या बोलते हो जब रेस करते हो? अपने को क्या बोलता हूँ मतलब Motivation. जब भी भागता हूँ तो अच्छा वैसा गो टू मंत्रा क्या है, कुछ ऐसा? नहीं वैसा नहीं, मतलब जब भागते हो तो क्या अपने आप को कुछ मतलब मेरे को यही रहता है कि मैं जितने भी कंपटीशन करूँ उसमें अपना पर्सनल बेस्ट दूँ। मेरे को एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि जैसे कि एग्जांपल इंडिया में मैं 20.40 करके गया था सीना फेड में एंड 1 वीक बाद ही मैं दुबई में था कंपटीशन, तो वहाँ 20.45 किया। आई वाज लाइक ओ गॉड, मतलब क्यों भाई क्यों, मतलब दूसरे लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किया अच्छा करूँ, मतलब ऐसा है कि किसी भी कंपटीशन में कम परफॉर्म करूँ तो मेरे को डिसअपॉइंट होता है कि नहीं अच्छा कर सकता था ऐसा, क्योंकि 20.52 था क्या बोलते हैं 20.53 था एशियन चैम्पियनशिप का रिकॉर्ड क्वालिफाइंग, बट 20.45 करने के बाद भी मैं खुश नहीं था। तो हर एक कॉम्पिटिशन से ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि मैं अपना पर्सनल बेस्ट दूँ। no, ऐसे नहीं, but when you are running, like when you are running the race, what do you keep telling yourself? पुश अच्छा इंटरस्टेट के बाद आप वापस यूरोप जाओगे ट्रेनिंग तो फिर नहीं अभी यहीं पे इंडिया में? नहीं, अभी तो वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है ना। उसका प्रिपरेशन कैसा होगा फिर वर्ल्ड एथलेटिक्स? प्रिपरेशन कोच प्लान किया है, मेरे कुछ बात बोले नहीं है वो, क्योंकि अभी हर 1 वीक का प्लान बना के दे रहे हैं मेरे को, क्योंकि अभी ये मीट आ गया देन नेक्स्ट वीक इंटरस्टेट है, तो हर एक वीक का ऐसा बना के दे रहे हैं मेरे और को। आपके अंदर का होप्स भी ऐसे जाग रहा है कि कैसे है? मेरे तो बहुत एक्सपेक्टेशन है मेरे से। सर लास्ट कपल I just want to say one thing, just don't follow others, do something unique that everyone follows you. That's my quote.